Okay, once again, am I audible? Please drop a message in the chat box. You are able to listen to what we are saying. Alright. So guys, Bismillahir Rahmanir Rahim. Once again, I was telling you, my name is Mohammad Tala Salim. And inshallah, I'll be the facilitator for writing skills course. Inshallah, we'll talk about writing skills. What is it about? Currently, I'm a principal in a school in the morning, and afternoons I'm teaching at Zebis University and also Ikra University and ARTT Business School for Chartered Accountancy. Okay, so inshallah, my area, the speciality is of English. I've personally done MA English Linguistics and then MS Applied Linguistics. It's 18-year education MPhil level. Okay, and personally, I have experience of teaching to Chartered Accountancy students at ARTT Business School, at CAMS College, at Tabani's Clifton, and I have also taught in different universities of Karachi, from NAD University to Behriya to CBN to Ikra to Zebis, you name it, alhamdulillah, I've been there. Okay, and rest, inshallah, I'll be there with you for this writing skills course. This course is prerequisite course for all PRCs. You have understood by yet, PRC mean prerequisite course, that is mandatory. Actual courses, actual knowledge which you are going to gain are, actually they start from CAF level, right? But this prerequisite courses are mandatory courses. These are basic courses which are required, for all the students of Chartered Accountancy to clear before appearing in CAF exams, right? So this is prerequisite, mandatory course. But I say this writing skills course is prerequisite course for all PRC courses. Understood? Making sense? So why is it mandatory? Why is it prerequisite for all PRCs even? And all CAF level and all CFAP level? The reason is English, all responses, all your education, all your courses, all your studies are in English language. So if you have good command over the language, good comprehension skills, you will be able to understand the question of law. You will be able to understand questions given in tax. You will be able to understand, whatever the situation and cases you will receive in different papers, right? You will be able to understand IFRSs, right? International Accounting Standards, which you will study later on. So English is the basic, language, and it is the demand and the requirement of, from Chartered Accountancy students by ICAP, that students of Chartered Accountancy should be able to comprehend well and should be able to write well. And for that they have devised this paper, and today inshallah we'll talk about the course outlines, we'll talk about we'll see the sample paper, and you will get to know how important it is and how somehow difficult it is. And many students fail in this paper because they put all efforts in other PRC papers, but they miss out somehow this writing skills paper. Is it clear? Okay, so what are the common areas which we have to cover? This is the study text. Do you have study text? Hard copy, you have the book? You have the book as well. So this is unit number 1, the writing process. It talks about all writing areas and the basics of writing. What is the process? For example, it's not how we used to write in intermediate, it's not how we used to write in our O-level, for example, examination, where we used to just hold a pen, right? We used to get the qalam and we used to start writing. And then we used to take a pause and used to think, and then we used to write some more, and then we used to take a pause and then reading more and thinking more and then writing. So it didn't have coherence. Coherence bole to, it didn't have connection. Aapas mein paragraphing ka jo connection which is required from any author, from any writer, that actually miss when we do not plan. So writing here, you will actually see and you will learn there is the process of writing for which you will think before writing, and then you will plan and you will decide, my first body paragraph will be about this, my second body paragraph will be about this, and third body paragraph will be about this. I will begin from here, then I'll talk about it, and then I'll talk about it, and this is how my article will end. Right? Is it clear? So this is about the writing process. You will learn about all the processes, brainstorming strategies, and marks, good marks. For example, 20 marks are included for this portion. Then you have a business message. We'll talk about it, marking scheme later on.
Another area which we have to cover is business messages and correspondence, right? All email writings, letter writings, memorandum writings, okay, summary and précis writings, and report writings will be included in this part. And examiner is very, very, very specific. Examiner bole to ICAP. ICAP is very much specific about the formats and the content and the quality and the level bole to level, right? The level of the language, ठीक है? ICAP ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है, जो फ्यूचर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी अंग्रेजी, उसकी लैंग्वेज शानदार होनी चाहिए, जानदार और शानदार. So you have to put efforts to understand the format. इतनी स्पेसिफिकेशन है कि अगर 4 लाइन में एड्रेस देना है तो 4 लाइन में ही देना है. 5वीं लाइन दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, right? Mark कट जाएगा. So you need to be very careful and you have to practice with the teacher, with the book, with YouTube videos and lectures available, and you have to put efforts inshallah to understand formatting. For example, what's the format of the memorandum? How will we design email writing? How will we decorate, for example, letter writing? And we need to know, okay, where is the inside address? How am I going to salute? Salutation, for example, dear Mr. or dear Sir. कहाँ कब क्या लगाना है? What will be my date format? ठीक है, date का क्या format होगा? And how will I end and conclude this letter? And and where will we write the, for example, date and the reference, etc. Okay, so inshallah you are going to learn about business messages and correspondence and the language which is required by the business person, because in tomorrow inshallah when you will be chartered accountant, you will work in firms and you will have to regularly, on regular basis, you have to correspond with other clients, right, with people, industry. For example, sometime you will be writing an email to Aga Khan University Hospital, right? Sometime you will, sir, why am I am not a doctor? Yes, you are not a doctor, but tomorrow you are going to do audit with the firm, okay? Being part of the firm, you will be corresponding, communicating with different industry people, right? And for example, Lucky Cement, you are sending an email, you are receiving an email. So in all industries, all firms and institutions, they have accountancy, and when they have accountancy and finance, they have audit as well. And inshallah, future is yours. Okay, then you have the third unit. We will talk about report writing. Okay, reporting is also very common in our business situation where भाई ये बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया? बात समझ में आ रही है? मैंने डायरेक्ट जहाज़ को कितना 1000-2000 फुट की बुलंदी पे तो नहीं ले गया हूँ ना? हेलो, अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है जी? ऑनलाइन वाले हजरात भी ज़रा से बोल दें ताकि हम वापस आ जाएं, वरना हम तो डायरेक्ट जो है ना वो फ्लाई कर गए हैं. ऐसा ना हो लोग कहें कुछ शर ने थोड़ा सा बेसिक तो बताया ही नहीं, इतना शाला बोल रहे. मैंने अभी कुछ पलाना शुरू नहीं किया, राइट? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बेसिक्स. ओके, समझ में आ रही है? तो यूनिट नंबर 1 मैं डायरेक्ट स्टडी टेक्स्ट पे लैंड किया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने दे मस्ट हैव सीन स्टडी टेक्स्ट बिकॉज दे वर हैविंग अदर क्लासेज. यार राइटिंग की क्लास नहीं हो रही तो राइटिंग में क्या है, तो उन्होंने खुद से बुक को यकीनन देखा होगा. सो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट राइटिंग प्रोसेस. देन यू हैव बिजनेस मैसेजेस and correspondence, communication, letters, emails, memorandum. Then you have business report. Reporting is a day-to-day routine situation in your inshallah a professional career, where you will have to write sometime progress report. What is the progress of the audit, for example, you are doing for XYZ company? So you will have to write a progress report. Sometime once you will complete the audit, you will have to submit and write audit report. Some other day you will have to write some other report. So process report, progress report, proposals, etc., etc., you will have to write reports. So feel as if you are now becoming professional, feel as if you are in the field of chartered accountancy. This is the day 1, but you are actually in the samundar, ठीक है? You are in the sea, ठीक है? तुम अब समंदर में आ चुके हो और इसको फील करो और इसको इसी तरीके से लर्न करो. डू नॉट मैं बीच में कुछ और बातें भी करता हूँ कि डू नॉट मिस क्लासेस. हम क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट हल्का है, इकोनॉमिक्स है, चलो इसको छोड़ दो, ये तो मैंने इंटर में किया था. ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बेसिक मुझे आती है, क्लास मिस करो. डू नॉट मिस क्लासेस ऑफ एनी सब्जेक्ट. डू नॉट टेक हल्का टू एनी सब्जेक्ट, टू एनी टीचर, टू एनी कोर्स. सीए के अंदर हल्का कुछ नहीं है. यही कोर्स लटका देता है. लटकाना समझते हो? आपको गिरा देता है, फेल करा देता है, राइट? एंड यू क्लियर ऑल फॉर अदर पेपर्स एंड यू से यार ये राइटिंग करो गया, राइट? सो यू नीड टू बी केयरफुल. और मैं तो ये कह रहा हूँ कि गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कोर्सेज. हाँ, वो अलग बात होती है जो इंसान का वीक एरिया होता है उस पर ज़रा ज़्यादा एफर्ट करता है. यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर एग्जाम्पल इन क्यूटी. यू हैव टू पुट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन अकाउंटिंग. वो अलग बात है. लेकिन डू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरी सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्पेंडिंग
इसमें एक बहुत अहम बात और है जो मैं बातों ही बातों में बता रहा हूँ, वो ये है कि यू हैव टू मैनेज योर टाइम। हम क्या करते हैं, अकाउंट्स लेके बैठे, पूरी रात लगा दी, आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, पूरी रात क्या पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, ठीक है। या अदर डे, आज छुट्टी है, आधा दिन है, आज क्लासेस कम है, आधा दिन आपने जो है सारा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। नो, यू नीड टू मैनेज योर टाइम, 1 hour फॉर एग्जाम्पल फॉर अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल 1.5 hour फॉर QT, देन गिव फॉर एग्जाम्पल 45 to 1 hour to English. This is how you need to manage your time, and this is how your brain works better, where you change after some time and your efficiency in the other subject increases. Let's come back to the fourth unit, that is unit number 4, that is about vocabulary and phrases. Vocabulary is too much, and usually teachers do not teach this vocabulary portion to the students. So sir, who teaches? Nobody teaches. Who works? Students work. The students have to put a lot of efforts to understand. For example, this is the word key. So what is the what is the root of this key? This key is, for example, it's a noun. Okay. So for example, if the word is verb or the noun or adjective or adverb, you have to identify. Then you have to work on, for example, similes. You have to work on metaphors. Then you have specific, special vocabulary given by ICAP that you have to learn, and you have to memorize meanings. Right, then you have 1000 plus idioms available, and you have to learn them, memorize them. Okay, इतना शाला हम कैसे करेंगे, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, आप भी कर लेंगे. Okay, so you need to spend time देना है, और साथ साथ you have to work on vocabulary and phrases. Unit number 4, which you have to do yourself. ठीक है. Then you have writing. Writing के अंदर you have report writing. Writing के अंदर you have letter memo and email writing, and then writing के अंदर you have another type of writing, argumentative writing, where they have included cause and effect writing and writing about arguments, right? How you have to convince the reader. So argumentative writing is again अच्छा खासा work, where you have to understand the concept, you have to learn different types and processes of writing, and then you have to practice how to write less. Writing more is easy, but writing 250 words, which is the demand of ICAP, is a little bit difficult, because ICAP wants you to use everything, all the strategies and your knowledge. And then very important part is reading comprehension part, where examiner will give you a good quality content. We'll see some sample as well. ठीक है, अच्छा खासा लेवल का होता है, लेवल बोले तो लेवल. तो you have to read it, you have to understand, you have to comprehend, and then you have to respond to the questions given by ICAP with choices. Right, there are choices available, and you have to choose the right kind of response. It's not that easy, as you must have done reading comprehension before in your Cambridge or other type of examination systems. Okay, so these are 6 units, and I want, and you actually will have to work on it, and you have to understand formatting, you have to understand language, you have to see samples, and then you have to read content, you have to understand the content, and you have to memorize. So it's a mixture. कुछ चीज़ों को याद करना होगा, रट्टा लगाना होगा, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा, कुछ चीज़ों को टेक्निकली फॉर्मेटिंग, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीख रहे होगे अकाउंटिंग में, तो वो कुछ फॉर्मेट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के. यही यहाँ पर है कि आपको कुछ फॉर्मेट टेक्निकली सीखना है. अगर वो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आइल्स का किसी ने एग्ज़ाम दिया, आइल्स के एग्ज़ाम को एक बहुत अच्छा अंग्रेजी जानने वाला पास नहीं कर पाता, क्योंकि एक फॉर्मेटिंग है. इफ़ यू नो दैट फॉर्मेटिंग, यू विल बी एबल टू क्लियर इट विद लेस लेवल ऑफ लैंग्वेज. लेकिन अगर वो टेक्निकलिटीज़ नहीं आई तो फिर भी फंस जाते हो. इसी तरीके से ICAP के अंदर भी यहाँ पर सारे टाइप की मेमोरी चाहिए. थोड़ा सा टेक्निकल माइंड चाहिए, थोड़ा सा जो है आपको मेमोराइजेशन चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड चाहिए, और थोड़ा सा अपने ओन से यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस. एवरीवन अचीव यू और सोई व्यू. हेलो, जागिंग और स्लीपिंग. हेलो, जाग रहे हैं भाई? मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है, घबराहट तो नहीं हो रही? अच्छा अच्छा, असेसमेंट की बात पहले करें या पहले हम सैम्पल देखें? चले पहले कोर्स आउटलाइन देखते हैं. ये PRC सिलेबस आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देख चुके? अरे अब तक देख चुके होना चाहिए था. इसमें आपको पता है यू आर एबल टू सी, आई थिंक. हेलो हेलो, कैन यू सी दिस? यही सारी चीज़ें हैं ना आपके पास. Business writing and comprehension skills, then you have quantitative methods, then you have principle of economics, introduction to accounting, and then you have introduction to business. मैं तो अपने कोर्स की बात करूंगा, लेकिन ये आपके साथ शेयर कर देंगे so that you will be able to see other courses as well.
ठीक है। ओके, हेलो, प्रोफिशिएंसी लेवल है, एग्जामिनर को तमाम प्रोफिशिएंसी लेवल्स चाहिए, इसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। यू शुड रीड इट सो दैट यू शुड नो। असल में बहुत अहम चीज़ क्या है, हम लोग जो है वो कोर्स के बारे में एग्जामिनर क्या चाहता है इसको मिस आउट कर देते हैं। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्जामिनर क्या चाहता है। देखो, यूनिवर्सिटी के अंदर हम चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि भाई हर टीचर के बारे में जानो, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द टीचर। टीचर जो क्या चाहता है उस तरीके से अगर तुमने कर लिया, यू विल गेट गुड ग्रेड। अगर तुमने टीचर की नीड एंड डिमांड पे पूरे नहीं उतरे, यू विल फेल द कोर्स। द सेम वे हियर आई एम टेलिंग यू, इफ यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर, द आई कैप, राइट, यू विल बी एबल टू गेट गुड ग्रेड। अगर तुम्हें आई कैप की नीड एंड डिमांड नहीं समझ में आई तो फिर क्या होगा, यू विल मिस मार्क्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। तो नीड एंड डिमांड एंड द ख्वाहिश ऑफ द एग्जामिनेशन बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। चाहे वो तुम कैम्ब्रिज का एग्जाम दो, चाहे तुम ये देखो, ये कह रहे हैं कि हम प्रोफिशिएंसी लेवल का जो हायर लेवल है ना, T1 लेवल, उस पे भी हम चाहते हैं कि बच्चा शुड गेट एटलीस्ट 8 मार्क्स। यानी अगर बच्चे का लेवल बिल्कुल ही ख़राब है, ठीक है, बच्चे ने ना लैंग्वेज सीखी, और इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, ये इट्स अबाउट ऑल 5 PRC पेपर्स, तमाम पेपर्स के बारे में। अगर बच्चे की कमांड उस सब्जेक्ट के अंदर इस टॉप नॉच की नहीं हुई तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट गुड ग्रेड, ठीक है। यानी कि यू माइट फेल इवन। वो कह रहे हैं 8 नंबर तो आपको T1 लेवल पर लाने ही लाने हैं मिनिमम। देन T2 लेवल, तुम इसकी तफसीलात बाद में पढ़ लेना। द मैक्सिमम लिमिट पर 20 मार्क्स यू शुड गेट। यानी अगर बच्चा ऑल पेपर्स के अंदर या ऑल पेपर के अंदर T3 लेवल पर बैठा हुआ है तो वो इज नॉट गोइंग टू क्लियर दैट पेपर, ठीक है। तो आपको 25 नंबर मिनिमम जो है T3 लेवल, अगर तुम्हारा T2 लेवल है तो जाहिर है वो 25 मार्क्स जो T3 की डिमांड है वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर तुम्हें T2 लेवल पर, और इसी तरीके से अगर तुम टॉप पर आ रहे हो, टॉप T1 लेवल पर, तो दैट्स वंडरफुल, ठीक है। सो दीज आर टेस्टिंग लेवल्स। लेकिन ये बात है कि जो कमज़ोर बच्चा है या जो लो लेवल अपने आप को समझता है कि मेरी अब तक की पढ़ाई ऐसी हुई थी गुजारे लाइक, तो उसको अपनी एफर्ट करनी होगी, क्योंकि उसको अपने अपने सब्जेक्ट में, चाहे वो स्टैट्स QT हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे ITB वगैरह कोई भी कोर्स हो, चाहे हमारा कोर्स हो, उसको टॉप पे कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं? हेलो, बोलिए 8 नंबर तो T1 लेवल पर लाने ही लाने हैं। बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, अब आ जाते हैं, दिस इज PRC1। मैंने कहा कि PRC1 इज PRC ऑफ ऑल PRC। समझ चुके हो ना मेरी बात को? अंडरस्टूड। सो नाउ वी हैव अगेन कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हमने अभी लास्ट यूनिट देखा था, दैट वाज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। वेटेज बोले तो मार्क्स आर तकरीबन फ्रॉम 20 to 30। सो यू आर गोइंग टू गेट बिटवीन 20 to 30। आई कैप कुछ चीज़ों को वेग रखता है, बिल्कुल वाज़ेह नहीं बताता, ताकि जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसके बाद गुंजाइश होती है। ड्यूरिंग एग्जाम दे डू चेंज सम थिंग्स। सो वेटेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पार्ट इज फ्रॉम 20 to 30। 20 मार्क्स से लेकर 30 तक जो है वो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट यू कैन गेट। अनदर अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जाहिर है उसका जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। देन आइडिया जनरेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजीज विच वी आर गोइंग टू लर्न। एफिनिटी डायग्राम हम सीखेंगे, फिशबोन डायग्राम सीखेंगे, इस तरह से और टेक्निक सीखेंगे। तो आइडिया जनरेशन एंड राइटिंग पार्ट, आर्ग्यूमेंट करना, राइटिंग, इट विल ऑल्सो बी अबाउट 20 to 30 मार्क्स। ये 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। 20 to 30 मार्क्स आर फॉर दैट। एंड देन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोले तो ईमेल्स, लेटर्स, मेमोरेंडम, ठीक है, ये लिखने होंगे, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम 40 to 60 मार्क्स। बोलिए वाओ। एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट भी लिखनी होती है। सो टोटल मार्क्स आर गोइंग टू बी 100, एंड यू हैव टू practice and you have to work on all areas so that you are going to get good grades। जिस बच्चे ने तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी, वोकैबुलरी भी अच्छी आती होगी और वोकैबुलरी का इस्तेमाल भी आता होगा, राइटिंग भी वो अच्छी कर रहा है, फॉर्मेट जिस तरह आई कैप कह रहा है, आउटलाइन बनाकर उस तरीके पर जो है ना पैराग्राफिंग करो, उस तरीके की लैंग्वेज करो, तो वो फिर तो अच्छा होगा। लेकिन अगर उस तरीके पर नहीं किया तो फिर क्या होगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। खान साहब क्या कहता है? हाँ, फेल को क्या बोलेगा? फेल। तो फेल नहीं हो जाना, पीला नहीं पड़ जाना, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह वी नीड टू पुट एफर्ट्स। मुमकिन है, डरा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले दिन से आपको रियलाइजेशन हो, सो दैट यू विल पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन ऑल। अब क्या करें सर, जब तक क्लासेस हो रही हैं, कम हो रही हैं या जैसी हो रही हैं, या ड्यूरिंग क्लासेस भी हम क्या करें कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। आई कैप कहता है रीड करंट अफेयर्स, क्योंकि टॉपिक जो आएगा एग्जाम का वो क्या होगा? वो करंट अफेयर्स में से होगा। पिछली हिस्ट्री है 15 साल की आई कैप के अंदर। कौन से पेपर आते हैं?
करंट अफेयर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इशू इज द हॉट इशू फॉर पास्ट 1 ईयर, ये बहुत अहम है। इससे पहले कोविड-19 के ज़माने में कोविड वाले टॉपिक आते थे, मैचेस के ज़माने में मैच से मुतालिक टॉपिक आते हैं। सो यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल या स्टार्ट रीडिंग करंट आर्टिकल्स, चाहे वो लोकल न्यूज़ में हो चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ में हो, बट स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग से 2 फायदे, वन इज यू विल गेट गुड आइडियाज फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, you will get good vocabulary, you will improve your language structures। तुम्हें अभी तक रीडिंग, हाँ, कमेंट्स पढ़ने का आदत है, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने का आदत है, तुम्हें चैट करने की आदत है, बट यू आर नॉट रीडर नाउ। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू फ्रॉम टुडे, स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल केयरफुली फ्रॉम टुडे। देखो हम लोग रीड भी करते हैं तो उड़ा देते हैं, लेकिन अगर रीड करो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से करोगे तो क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड हाउ हैज द राइटर बिगिन हिज आर्टिकल, ठीक है, हाउ इज राइटर मूविंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। तो थोड़ा सा केयरफुल रीडिंग, 15-20 मिनट लगा लो। एक आर्टिकल जिसको तुम 5 से 8 मिनट में पढ़ सकते हो, तुम उसको 15 से 20 मिनट में पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू एनालाइज डिफरेंट themes, emerging themes, different vocabularies, paragraphic making, and also you will understand the topics and the language and the content about the topic। क्या ख्याल है? हाँ, मैं तो भाई थक गया, आप लोग थके या नहीं थके ना? तो आप जल्दी से चैट करें और बोले वी आर अंडरस्टैंडिंग। आप बोले भाई हम समझ में आ रही है हमें बात, कोई नहीं समझ आ रही सवाल करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, सवाल करें। आज तो हम पढ़ने के लिए तो नहीं है ना, आज पढ़ने आए नहीं है, आज तो हम बातें करने के लिए। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, वेरी नाइस, थैंक यू मिस्टर सैयद। ऑलराइट, वी आर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? सर आर्ट्स ये पढ़ाई से मुताल्लिक है कि तुम्हें इतनी क्लासेस लेनी चाहिए, इसकी इतने घंटे यू शुड स्पेंड इन क्लासेस लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे वो कहता है 15 से 20 घंटे तुम्हें लगाने चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू have the command over this part of the comprehension and you should be able to understand it, ठीक है, comprehend it well। आइडिया जनरेशन आर्गुमेंट पे 15 से 20 घंटे लगाने। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पे एग्जामिनर की चाहत है कि 30 से 35 घंटे लगाओ ताकि तुम 40 से 60 नंबर ले सको। पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड, इट इज कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। दूसरे कोर्सेज के अंदर तुम्हारा क्लिक होता है ना, MCQ बेस्ड होता है। ये कोर्स होता है वाहिद कोर्स जिसमें तुम्हें टाइपिंग करनी होती है, जिसमें तुम्हें लिखना होता है, राइट। बाकी कोर्सेज में क्लिक करते रहोगे, यहाँ पर क्लिक के अलावा टिक भी करोगे। एवरीवन, अच्छा, लर्निंग आउटकम्स भी बताए हुए हैं, थोड़ा सा इसकी बात करें या नहीं करें? कर लें, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। हेलो, स्किमिंग एंड स्कैनिंग रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, वी हैव टू अप्लाई इट, ओके। और लेवल वो कहता है कि इट शुड बी T1 लेवल। समराइज द गिवन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट वुड बी गिवन एंड यू वुड हैव टू राइट अ प्रेसी और द समरी, ठीक है। दैट लेवल इज रिक्वायर्ड फॉर अबाउट T2, ओके। एंड देन लिस्ट डाउन एसेंशियल पॉइंट्स ब्रीफली, ठीक है। टॉपिक देगा, आर्टिकल देगा, उसमें से कहेगा इसमें से 5 की पॉइंट्स निकालो, समझ में? यानी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप रीडिंग करना शुरू करो। व्हेन यू विल रीड यू विल अंडरस्टैंड कि राइटर इसमें क्या चाह रहा है, what is the demand or the need of the writer, राइटर क्या चाहता है। तो व्हेन यू विल रीड, ICAP आपको कहेगा, एग्जामिनेशन आपको कहेगा कि आप उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करें। अब जाहिर है जो उसके की पॉइंट्स है वही निकालोगे तो 5 नंबर मिलेंगे फॉर एग्जांपल, या 10 नंबर मिलेंगे। अगर तुमने 3 पॉइंट सही निकाल दिए, 2 गलत निकाल दिए तो मार्क कट जाएंगे। तो ये कब सही होगा? जब हमारी रीडिंग अच्छी होगी। अगर हमारी रीडिंग अच्छी नहीं है तो ICAP का जो आर्टिकल होता है उसका लेवल बार बार आ रहा है, इज़ वेरी हाई, तो तुम्हारा लैंग्वेज का लेवल भी, प्रोफिशिएंसी लेवल शुड बी एट हायर। अप्लाई ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग टेक्निक्स, ये भी T1 लेवल पर है। आइडेंटिफाई फैक्ट्स, अजम्पशन एंड ओपिनियन, कहाँ पर फैक्ट आ रहा है। फैक्ट वो होता है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो। कहाँ पर जो है वो एक बंदे का ओपिनियन है। अब जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बात सच्ची आ रही है। सच्ची बात के लिए ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? फैक्ट होता है कि अगर इफ़ इट इज़ फैक्ट, इफ़ द ऑथर, जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो वो फैक्चुअल बात कर रहे हैं तो मैं उसको मानूंगा। तुम एज अ पढ़ा लिखा, बिकॉज ICAP wants to literate you, ICAP wants educated people in chartered accountancy, जो कि हर लिखी हुई या बोली हुई बात को मान न ले। हम में से बहुत सारे होते हैं ना, YouTube खोला, कोई चीज़ हुई, उससे पूछा, YouTube ने कुछ बात बताई, हमने कहा अच्छा ये बात है, अंकल तो ये बात कर रहे थे YouTube में, ठीक है, अभी ऐसे ही होता है। वहाँ गए तो पता चला कि नहीं, इट इज़ नॉट दैट, ठीक है, ऐसा है नहीं। तो एक पढ़ा लिखा इंसान वो विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, तो मेरी बात को नहीं मानोगे।
क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, तुम कहोगे यार पता नहीं सर कह रहे थे बात सही है या गलत है, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। तुम उसको 2 और जगहों से वेरीफाई कर लोगे, ठीक है। जब वेरीफाई कर लिया तो क्या हुआ कि वो बात ऑथेंटिकेट हो जाएगी, यस सर ने बात सही कही थी, क्योंकि सर भी इंसान है, गलत कह सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन अब मैं ये अगर रेफरेंस के साथ दे रहा हूँ, ये आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आई कैप ने खुद निकाली हुई है, तो अब आपको बात मानने में आसानी हो गई एवरीवन। तो हम अब आई कैप ये चाहता है कि आपका लेवल, क्रिटिकल लेवल ज़रा हायर हो, एंड यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन एंड आस्क एंड वेरीफाई एंड टेस्टिफाई कि वो बंदा जो कह रहा था एक बात के पिछली गवर्नमेंट ऐसी थी और ये वाली गवर्नमेंट ऐसी है, तो क्या वो ऐसा है भी या नहीं, यानी कोई हमें पागल ना बना दे, कोई हमें मिसगाइड ना करे। सो एजुकेटेड पर्सन एक्चुअली use his own dimag, he use his own background knowledge and actually learns about more about the topic and then decide कि यार वाकई बात है क्या, समझ आ रही है। इसीलिए जो कोई आके बताए, कल को तुम लोग इंशाल्लाह CFO बनोगे, CEO बनोगे, ठीक है, COO बनोगे, बड़े बड़े सीनियर पोजीशंस पर तुम लोगों ने होना है, कल को तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे, ठीक है। बोलिए वाओ सर आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, आमीन बोल तो दो, ठीक है, बनेंगे इंशाल्लाह ना। तो जब इतनी अच्छी पोजीशन पर होगे, एक बंदा तुम्हारे आके कान में बोले कि शायद वो जो है ना वो फलाने मैनेजर साहब जो है ना वो ये कह रहे थे, तो अब तुम एक पढ़े लिखे आदमी होगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे, एंड यू विल हैव क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तो तुम उसकी बात को एज इट इज नहीं मान लोगे, तो उसको 2-3 जराए से वेरीफाई करोगे, टेस्टिफाई करोगे, फिर जहाँ जो तुम्हें डिसीजन लेना हो तुम उसको ले रहे होगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, ICAP wants you to understand where the writer uses opinion, where the writer uses fact, and where the writer is using assumptions, ठीक है। और उसके बाद when you become the writer, जब तुम खुद राइटर बनोगे तो तुमने भी कहीं पर फैक्ट लगाना है, कहीं पर ओपिनियन लगाना है और अपनी बात को किस तरह से पेश करना है। उसके अलावा एग्जामिनर wants you to prepare argument for and against the subject, कुछ चीज़ें तुम्हें इन फेवर ऑफ द टॉपिक बोलनी है या उस पर कन्विंस करना है, कुछ चीज़ों में यू हैव टू गो अगेंस्ट, तो तुम्हें दोनों अंदाज से चीज़ों को लेकर मैनेज करना आना चाहिए, एंड दिस इज T2 लेवल। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई स्पेसिफिक वोकेबुलरी एंड फ्रेजेस, T3 ड्राफ्ट बिजनेस रिपोर्ट, लेटर, मेमो एंड ईमेल, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी है, इतना जितना हमने पढ़ा और समझा। अब हम सैम्पल पेपर भी देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या देने वाला है। हाँ राइट, ओके, सो अब आ जाते हैं हम पेपर की तरफ। पेपर पे जाएं, हाँ पेपर पे जाते हैं और फिर हम जो है इसके असेसमेंट क्राइटेरिया की तरफ भी आएंगे। पहले पेपर देख लेते हैं। पेपर में मेरे पास सारे क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन राइटिंग वाला गायब है, जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर कवर्ड, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर हो रहे हैं। कल को तुम्हारा CRN बन गया, ICAP से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, अच्छा CRN हो जाएगा ना तो तुम्हें ICAP की वेबसाइट पर एक्सेस मिल जाएगा। जब एक्सेस मिल जाएगा यू विल बी एबल टू सी ऑल द मटेरियल, लर्निंग मटेरियल एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, वेबसाइट पर तुम्हें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। फिलहाल ये मैं आपको सैम्पल एक दिखा रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। अब तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें इसको कॉम्प्रीहेंड करना है। एक सैम्पल पेपर है, ICAP ने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, अभी भी नज़र नहीं आ रहा, ओके हेलो जी। अब देखिए इसको ज़रा सा रीड कर लो, चलो रीडिंग भी स्टार्ट कर देते। मेमोरेंडम सैयद रहीम, मेमोज आर रिटन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू वांट टू कॉरेस्पॉन्ड एंड कम्युनिकेट और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यू यूज़ मेमोरेंडम। आजकल के एडवांस दौर में ये मेमोरेंडम व्हाट्सएप पे भी शेयर हो जाता है, ये मेमोरेंडम जो है ईमेल के ज़रिए भी चला जाता है, ठीक है, एज एन अटैचमेंट। अच्छा अभी हम रीड करते हैं। This is the sample paper given by ICAP. अभी हम इसलिए बढ़ रहे ताकि हम जरा देखें कि मैं इसमें से कितना समझ रहा हूं। अब अगर आपको कोई वोकेबुलरी इसमें नहीं आती तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई नीड टू इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल्स। और अगर हमारा लेवल इतना है, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वंडरफुल।
जी वंस कंप्लीट द रीडिंग क्लैप वंस, ऐसे ताली बजाएंगे ताकि मुझे पता चल जाए यू हैव रेड इट। और आप अपने घर में ना बजाइएगा, ठीक है, वरना मम्मा कहेंगी क्या कर रहे हो, अकेले तालियां बजा रहे हो। More? Once done, please type in a chat box you have done it. Once done, clap once. Don't clap twice. अपने आप को नंबर दीजिए 10 में से कितने आ रहे हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में। मैं इसको समझ पा रहा हूँ, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट और आई एम नॉट। मुन्ना भाई डन, पढ़ लिया, जल्दी पढ़ो। We just want to evaluate our level with ICAP, if we are at that level or we need to put a lot of effort to reach, to catch that level। ठीक है, उसको कैच करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी है। ठीक है, गुड गुड, थैंक यू मिस। सही ताली बजाओ ना तो हमें पता चलेगा ना यू हैव रेड इट। और बच्चे ताली नहीं बजा रहे, क्यों शर्मा रहे हो? क्लैप वंस। जी सबने पढ़ लिया? पीपल एट द बैक, एक और बात याद करें कि हमें लिप रीडिंग नहीं करनी, लाउड रीडिंग नहीं करनी। वी हैव टू रीड इन आवर हार्ट्स एंड दिमाग। ठीक है, रीड थ्रू योर आईज ओनली। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई कैप में इन्विजिलेटर आके कहेगा नॉक नॉक, बेटा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एवरीवन देयर? हेलो, डन? क्या पता चला हम कहाँ खड़े हैं? आई कैप कहाँ खड़ा हुआ? आर वी ऑन द सेम पेज? नो, सो वी नीड टू पुट एफर्ट्स। ठीक है, मैं सिर्फ यही रियलाइजेशन करवा रहा था दैट वी हैव टू अपलिफ्ट आवर लेवल ऑफ रीडिंग। ओके, हेलो। सो अब देखो इस तरह के सवालात होते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मनी बाय सिंथेटिकली अलाइव इंडिविजुअल्स कॉन्फर ऑन देम, सिलेक्ट 2 ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवालात आएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर मनीड इंडिविजुअल्स। ठीक है, मैं अभी इसके आंसर्स की तरफ नहीं जा रहा, हम अभी इसको डिसाइड नहीं कर रहे, बट सच आर द क्वेश्चंस विच आर प्रेजेंट इन ICAP's examinations. This is one of the questions, this is 1A question, right? This was reading comprehension, question number 1A. Moving towards question number 1B, in which examiner asks you to list down 8 important points from the following passage. Also suggest a title for the passage. ठीक है, इसमें तुम्हें कितने पॉइंट निकालने हैं? 8 पॉइंट निकालने हैं। अब जाहिर है कि 8 पॉइंट ऑल शुड बी रेलेवेंट। हेलो, छा मसलो है, लॉस्ट एंड फाउंड। हाँ, अच्छा, चलो भाई पेपर गायब हो गया। हाँ,
चलो क्या बोलेंगे, बोलिए वाओ। क्या बोलते हैं? वाह, नो प्रॉब्लम। चलो साईं जाओ और दिनेश भाई को बुलाओ। सोल्यूशन क्या है दिनेश भाई, समझ में आई? अच्छा, अच्छा एक और चीज़ है, हम उसकी बात कर लेते हैं उतनी देर और फिर हम सैंपल को दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, प्रेसीज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, राइटिंग के अंदर समरी अगर करनी हो तो उसमें क्या चीज़ होगी? वेलकम। अंग्रेज कहता है बेटर चाहता है हेलो ले उसको थोड़ा सा गाइड तो किया करो, बाद में गाइड कर देना। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट्स द गुड नेम? मोहम्मद रजा भाई, अगर तुम बहुत आगे जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर मतलब वहाँ नहीं, ठीक है, अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो तो फिर तुमने हेलो हाई करनी है, तो हाई करो ज़रा भाई। हाँ, ठीक है, वेरी नाइस। अब उनको बताओ कि हम वी आर अटेंडिंग PRC 1 और इसमें अभी तक हमने ये किया, अभी सर का टेक्निकल ग्लिच आ गया तो अभी थोड़ा सा पॉज लिया। इस तरह से हेलो हाई बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बाद में इंशाल्लाह आई विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, फिलहाल लेट्स कम टू द टॉपिक। फर्स्ट वन ए क्वेश्चन वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। द सेकंड क्वेश्चन वी वर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट गिविंग द टाइटल एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ज़रूरी नहीं है हमेशा 8 दे, कभी कुछ ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है, कभी कम भी दे सकता है, तो आपने उसके लिए रेडी रहना है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये तुम टेक्स्ट देख रहे हो, इसको पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो, ठीक है। सम पीपल ट्रीट मनी एज वाइटल एक्सटेंशन ऑफ देयर लाइव्स। पढ़ा हुआ है वही है ये। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब वो कह रहे हैं कि लिस्ट डाउन 8 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स निकाल लें। ऑल्सो सजेस्ट टाइटल। आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1B। इट मीन्स इट इज फ्रॉम द सेम टेक्स्ट, तो ये तो आसानी हो गई, बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द की पॉइंट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें बहुत परेशान रहते हैं। इसमें चॉइस होती है आइदर, ये एक्चुअली ब्रेन स्टॉर्मिंग की टेक्निक्स हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? व्हेन यू कलेक्ट आइडियाज रिलेटेड टू द टॉपिक, कॉजेज एंड इफेक्ट्स निकालते हो, आर्ग्यूमेंट निकालते हो, आइडियाज निकालते हो अबाउट द टॉपिक ऑन विच यू हैव टू राइट एन आर्टिकल, ठीक है। तो उसके ये तरीके होते हैं। ये फिशबोन है और ये जो है एफिनिटी डायग्राम का सैंपल है। इसमें से तुम्हें डेटा जो है वो इसमें डालना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी? cos 1, cos 2, cos 3, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2, इफेक्ट 3। और अगर तुम क्वेश्चन नंबर 2B ये दूसरा वाला करते हो तो फिर उसके अंदर यू हैव टू पुट मेन आइडिया एंड देन अंडर ईच आइडिया यू हैव टू राइट आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 एंड आइडिया 4, या फिर कम से कम यू शुड हैव 3 आइडियाज। तो मेन आइडिया, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, हर चीज़ के ब्लॉक्स विल बी गिवन और उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ मुकम्मल होती चली जाएगी। सो दिस इज अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स। राइटिंग से पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं उसकी टेक्निक से, ठीक है। रफ पेज नहीं होगा, वहीं पर दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करके डेटा इंसर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ अंदाज से दे सकते हैं। कभी ये डेटा बनाकर डेटा इंसर्ट करके देगा और उससे कुछ आइडिया मांगेगा, कभी उसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देगा और कहेगा इसमें से कॉजेज एक्सट्रैक्ट करके खुद डालो। तो मुख्तलिफ अंदाज से इट कैन बी टेस्टेड। सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सिनोनिम्स को मैच करने का बोला हुआ है, यानी मीनिंग जो करीब करीब है वो मैच करो, लेकिन हमेशा यही नहीं होगा। यू कैन बी आस्क्ड वोकैबुलरी इन डिफरेंट वेज, मैनी वेज, ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज से आपसे वोकैबुलरी पूछी जा सकती है। अब मैं अगर इसको मज़ीद आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इस तरह से वर्ड्स होते हैं और ये आपसे मैचिंग करवा रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ वर्ड होंगे, उसको उसके सिनोनिम के साथ करीब करीब क्लोज मीनिंग के साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन दिस इज़ वन आइडिया, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही हो। कभी फिल इन द ब्लैंक हो सकती है, कभी MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी दे हैव टू आस्क वोकैबुलरी इन एनी वे, मैनी वे। जिस तरह से भी वो पूछ ले, आई कैप को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों पूछा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो शुरू में था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि एक टास्क इज गिवन एंड
you have to write a letter, ठीक है. As manager customer relations of MH, write a letter responding to the inquiry. तो ये inquiry letter आया हुआ है, इसमें varieties of types of letters can be asked, ठीक है. letter हो, memorandum हो या फिर email हो, they can ask you to write it. और इसके अंदर सारा फॉर्मेट वगैरह they are going to check if you are following it or not. ठीक है. एक क्वेश्चन जो मैं कह रहा था which is missing, that is about essay writing. 250 वर्ड का एक essay आपको एग्जाम सिचुएशन में लिखना होगा. टॉपिक्स विल बी गिवन एंड यू विल हैव द चॉइस एंड यू विल चूज वन एंड यू विल राइट एन आर्टिकल. ठीक है, समझ में आ गई. अब इसको हम बंद नहीं करते फिर भी एहतियातन. जी, ये असेसमेंट क्राइटेरिया है. एग्जामिनर इज गोइंग टू लुक फॉर योर सूटेबल थीम फॉर द पैसेज, यूज ओन लैंग्वेज. ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है एवरीवन. जी, प्रेजेंट द की आइडियाज इन क्लियर, कोहेरेंट एंड कनेक्टेड मैनर. यूज करेक्ट ग्रामर, ग्रामर भी सही होनी चाहिए. यूज करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए. आज के दौर में तुम कहते हो ना कि सर स्पेलिंग का क्या है, स्पेलिंग तो हमें व्हाट्सअप बता देता है या स्पेलिंग तो ऑटो करेक्ट हो जाती है. वहाँ पर ऐसा नहीं होगा. जो तुम्हारी स्पेलिंग होगी वही आएगी, वहाँ अंडरलाइन रेड कलर से नहीं होगा. ठीक है, सो यू नीड टू नो करेक्ट स्पेलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी फॉर टेक्निकल जार्गन्स एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, अच्छा ठीक है. यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन्स, अगर तुम्हें प्रेसी करना हो, समरी राइटिंग करना हो तो वहाँ इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द लेंथ ऑफ प्रेसी राइटिंग शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट मेंशन इन द रिक्वायरमेंट. जो भी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट हो वो आपने हमेशा फॉलो करनी होती है. ऐसे राइटिंग फॉर 30 मार्क्स. ऐसे इज असेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस: कोहेरेंस एंड कोहेजन्स. ठीक है, आइडिया और आर्गुमेंट. इन केस ऑफ एन एफिनिटी डायग्राम, आइडिया आर्गुमेंट प्रेजेंटेड फॉर द अगेंस्ट, फॉर और अगेंस्ट द थीम, ठीक, should be restricted to the ideas, sub ideas identified in the diagram. In case of fishbone diagram, अगर fishbone होगी तो elaboration of ideas should be restricted to the cause and effect. तो इसमें समझ में आ रहा है आपको, या तो cause and effect पर बात करनी है या फिर arguments की जो थीम है उस पर, मेन आइडिया और सब आइडियाज पर. यानी जिस आर्ग्यूमेंट पर, जिस टॉपिक पर तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, फॉर और अगेंस्ट, या तो आइदर यू आर इन फेवर और यू आर अगेंस्ट, तो वो उसको उस तरीके से यू हैव टू प्रेजेंट. यूज अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, कि हमने हर पैराग्राफ के अंदर एक थीम को लेकर चलना है. वी शुड हैव वन थीम पर पैराग्राफ. फिर करेक्ट ग्रामर, लैंग्वेज शुड बी करेक्ट, टेंसेस का इस्तेमाल सही होगा. ठीक है, और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव का सही इस्तेमाल होगा. यूज करेक्ट स्पेलिंग, यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी. ठीक है, यूज इडियम्स एंड फ्रेजेस. जो तुम इडियम एंड फ्रेजेस वहाँ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग, जी बिल्कुल 2 घंटे का टाइम होगा, यू विल हैव 2 hours. ठीक है, तो यूज इडियम एंड फ्रेजेस. लेंथ ऑफ द एसे शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट मेंशन इन द रिक्वायरमेंट एंड यूजुअली इट इज 250 words. Then you have letter writing for 20 marks. Letter is assessed on the following basis. Criteria क्या है? Layout and format. देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन को समझ लिया और उसका फॉर्मेट बना दिया, कंटेंट नहीं लिखा, स्टिल ही विल गेट 3, 4, 5 मार्क्स. सही है, तो फॉर्मेट के अलग मार्क्स हैं, फिर कंटेंट के अलग मार्क्स हैं. तो फॉर्मेट के अच्छे खासे मार्क्स हैं और हो सकता है कि 5 से भी ज़्यादा मार्क्स हो. सो यू नीड टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट. सेकेंडली, सब्जेक्ट पर्पज ऑफ द लेटर. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इसके भी 3 नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे कि तुम्हें पर्पज पता है कि मैं लेटर क्यों लिख रहा हूँ. क्या, जैसे पिछला अभी हमने सैम्पल में देखा, इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी का मतलब वी वांट टू इंक्वायर, वी वांट टू गेन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग. ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन के यू आर गोइंग टू हैव मार्क्स. ठीक है, डियर मिस्टर, डियर सर, तुम क्या लगा रहे हो. फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर के मार्क्स है, बफर है. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंडर. जो टॉपिक, असल में टॉपिक की नीड के मुताबिक हम उसको स्टार्ट करते हैं. बैड न्यूज़ मैसेज है, बुरी खबर दे रहे हो, नेगेटिव खबर दे रहे हो, तो वी यूज बफर, देन वी टॉक अबाउट द रीजन, देन वी गिव द बैड न्यूज़ एंड देन वी पॉजिटिवली एंड. लेकिन अगर तुम उसको कोई खुशखबरी दे रहे हो, तुम उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, तो वो हम पे दैट न्यूज़ इज गिवन और यू नो डायरेक्टली उसको हम फॉरन बिगिन करेंगे. ठीक है, वो फिर हम बात करेंगे बाद में फ्यूचर में डायरेक्ट स्ट्रैटेजी क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी एंड ऑल. फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड द सिग्नेचर लाइन एंड द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड द करेक्ट स्पेलिंग एंड देन द करेक्ट वोकैबुलरी. ठीक है, तो हर जगह पर ग्रामर और वोकैबुलरी और स्पेलिंग वगैरह के भी मार्क्स होंगे. अगर गलत करोगे तो जाहिर है डिडक्शन हो जाएगी. देन यू विल हैव रिपोर्ट राइटिंग वुड बी ऑफ 20 मार्क्स. सूटेबल टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी. ठीक है, डिस्कशन, द डिटेल अबाउट द टॉपिक एंड देन द कंक्लूजन एंड द रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस, अपेंडिक्स और करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट वोकैबुलरी. मेमोरेंडम, लेआउट फॉर्मेट. ठीक है, जिसके अंदर नेम ऑफ इंटेंडेड
रेसिपिएंट, हु इज द रेसिपिएंट? रेसिपिएंट बोले तो द रिसीवर। बोर हो गए? अभी मौका मिलेगा तो मैं चाय पीने का इंशाल्लाह, ठीक है। मेमो इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। लेआउट, फॉर्मेटिंग क्या है? नेम ऑफ इंटेंडेड रेसिपिएंट, हु इज द रिसीवर? रेसिपिएंट बोले तो रिसीवर। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, डेट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द मेमो। ये पूरा आपको फॉर्मेट बनाना होता है। उसके अंदर, उसके बाद फिर आपकी बॉडी ऑफ द मेमो, मेमो के अंदर तमाम तफसीलात, रीज़न है, डिटेल्स है ऑफ वॉट एवर द टॉपिक विच विल बी गिवन टू यू, ठीक है। एंड देन इंट्रो, डिटेल एंड द कंक्लूजन। और फिर अगेन आपके इनिशियल बोले तो सिग्नेचर का छोटा वर्जन होता है। सिग्नेचर तो बड़ा होता है ना, उसका एक छोटा वर्जन होता है जिसके अंदर आप इनिशियल्स कर देते हैं, ठीक है। एंड यूज़ करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट वोकेबुलरी एंड ऑल। हाँ, सो इट्स, तो एक मेमो चला जाता था, एक खादिम या एक पीएन होता था जो उसको लेके जाता था, एम्प्लॉय साहब उसको पढ़ते थे, उस पर साइन करते थे और वापस भेजते। अगर आज और कल या 5 दिन तक एक्स्ट्रा सिटिंग करनी है, 2 आवर्स बैठना है, तो एक नोटिस बना दिया, उसी रजिस्टर में वो लेके गए, मुख्तलिफ लोगों से साइन करा लिया, तो ये क्या हो गया? इट इज़ मेमोरेंडम। आज के दौर में इट्स द फास्ट पेस दौर ऑफ द टेक्नोलॉजी वेयर यू डू सेंड, आपके एम्प्लॉइज़ 1000 हैं या 2000 हैं या 500 हैं, 200 हैं, वट एवर, आप एक ईमेल, एक पहले मेमो जनरेट करते हो, एक मैसेज पूरा बना लेते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है, और उसके बाद उसको आप ईमेल के अंदर अटैचमेंट में लगाते हो और ईमेल फ्लोट कर देते हो, तो आपके तमाम एम्प्लॉइज़ उस ईमेल को चेक कर लेते हैं, दे गेट टू नो व्हाट दे हैव टू डू। अगर एक बंदे को लिखना हो तो भी मेमोरेंडम लिखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर 1000 लोगों को, 1000 एम्प्लॉइज़ को लिखना हो तो यू डू राइट। लेकिन जहाँ पर तुम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हो विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो तुम क्या करते हो जी? तो फिर तुम लेटर करते हो। ये रहीम भाई आपको भी फील हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर ली होगी और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये 2 घंटे यूँ गुजर जाएंगे और पेपर भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सही है। बच्चे क्यों फेल होते हैं? बच्चे इसलिए फेल होते हैं, अगर फेल होते हैं, जो फेल होता है वो इसीलिए होता है कि उसकी लैंग्वेज वीक होती है या उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल वीक होती है। वो फिश बोन डायग्राम पे बैठा रहेगा तो वो बेटर है, तो वो फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो उसका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, और ये कब होगा? व्हेन वी विल हैव प्रैक्टिस। अगर तुम पहला आर्टिकल एग्जाम में जाके लिख रहे हो तो क्या ख्याल है? तो फिर तो मुश्किल होगी। अगर तुम 50वां आर्टिकल लिख रहे हो तो कितनी आसानी है। तुम्हें अगर लिखने की आदत, 30 दिन में तुमने 30 आर्टिकल लिख लिए एंड यू नो हाउ टू राइट, तो तुम एग्जामिनेशन में टॉपिक लोगे, तुम कहोगे ऐसी की तैसी, और हो सकता है तुमने उस पर 10 आर्टिकल पढ़े हुए भी हो, क्योंकि तुम रीडिंग भी कर रहे होगे। जो राइटिंग करता है वो रीडिंग करता है, जो बोलता है वो सुनता ज़रूर है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम राइटर यू हैव टू रीड। सो व्हेन यू विल बी रीडिंग 1 आर्टिकल एवरी डे, वो मुन्ना तो बोर हो गई, यार जिंदगी में मैंने कभी नहीं पढ़ा था, अब मुझे इतना शाला पढ़ना पड़ेगा। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, तो उसकी प्रेस्टीज को एंजॉय भी करोगे। शादी में बैठोगे, वो कहेंगे पुत्र की करता है, क्या कहोगे? पुत्र शीए कर दो, कहेंगे शीए, वाह सी और ए कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है ना। तो जब उसकी प्रेस्टीज को एंजॉय करना चाहते हो तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको भी तो फुलफिल करना है ना, क्या ख्याल है? ठीक है, उतना पढ़ोगे, उस लेवल पर होगे, तो फिर तुम जाहिर है तुम एक MBA से बहुत मुख्तलिफ होगे। MBA होना आसान नहीं है, BBA करना भी आसान नहीं है, बच्चे भाग जाते हैं यूनिवर्सिटियों से भी, पता है, ठीक है। लेकिन ये तो वो BBA MBA तो इधर, तुम तो वहाँ, जब तुम वहाँ हो तो तुम्हें उसके लिए फिर एफर्ट भी करनी है ना, ठीक है। एक वो बंदा है जो 1000 फुट की बुलंदी से छलांग मारता है, और एक वो बंदा है जो मेरी तरफ फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार कहता है, ये समझ आ रही है। तो जो 1000 फुट की बुलंदी वाला है वो तो जाहिर है, वाह, सही है ना? नहीं, तो यही है ना, तो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। जितना हायर रिस्क उतना हायर रिजल्ट, रिवॉर्ड। तो हायर रिस्क तुमने लिया है तो इंशाल्लाह यू विल हैव द रिवॉर्ड एज वेल। लेकिन एक दौर होता है मेहनत का, कहते हैं कि एक वक्त होता है कुर्बानी का, एफर्ट का, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, और एक वक्त होता है उसका फल काटने का। जो किसान होता है ना, हम कभी जाते हैं इंटीरियर सिंध, आप भी जाते होगे कभी पंजाब या KP के या इंटीरियर, तो तुम देखते हो किसान कितनी मेहनत कर रहा होता है, बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं बेचारे सारा दिन, और उनके पास छत भी नहीं होती अक्सर, ठीक है, छत भी नहीं होती। कोई किसी जगह पर किसी ने वो छोटा सा वो टेंट टाइप का लगाया हो, आमतौर पर दे वर्क ओपन, और हमारी तो सिस्टर्स ख़वातीन भी काम करती हैं वहाँ पर, ठीक है, इंटीरियर में। तो तुम जाके देखो कि वो गर्मी के अंदर काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट कब आता है? जब मैंगो आ जाता है, जब बनाना फ्रूट दे देता है, ठीक है, या जब कोई और गंदम आ जाता है, तो फिर उसके बाद उनको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। एक तो वो प्रोडक्ट भी मिल जाती है, वेजिटेबल मिल जाती है, जो भी चीज़ है, और एक उनको जो है वो जब उसको बेच देते हैं पैसा आ जाता है फिर उससे। तो यही है कि तुमने ये जो 4 साल 5 साल 6 साल है, इसमें जान लगा देनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह मज़े करेंगे, ठीक है। बोलिए वाओ।
सर आपने अंग्रेजी के साथ हमें काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, क्या ख्याल है? ज़हनी तौर पे हमें अपना लेवल हाई करेंगे तब पढ़ेंगे, वरना क्या करेंगे? वरना कहेंगे आ बहन चल चाय पीते, जाके चाय पियेंगे, एक बाजी होंगी और 3 भाई होंगे, या 3 बाजियाँ होंगी और 2 भाई होंगे, एक ग्रुप बन जाते हैं। तो देखो ग्रुप तो बनाने, लेकिन वो काहे के बनाने? स्टडी के बनाने हैं, ठीक है। अगर पढ़ने वाले 2-3 लोग मिल गए तो कोई मसला नहीं है, वो 2-3 लोग मिलके स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो चिट चैट वाले मिल गए तो दे विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ सीए वाले, ऐसे बच्चे देखे हैं जो सीए नहीं कर पाते ओनली बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंडशिप, और बाद में आके रोते भी हैं। जब फेल हो जाते हैं फिर आगे टूट जाते हैं। जब कोई फेल होता है, ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ, जब सीए में आगे फेल होता है फिर टूट जाता है, फिर रोता है, तो कहता है शर काश मैंने उससे मुलाकात ना की होती, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज हम अपना फोकस सही करें, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे वो भाई लोग हो, चाहे वो बहन लोग हो, ठीक है। अपनी एफर्ट करनी है, वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, और तब ही तुम उसको सब कुछ को पास कर सकते हो। ये तभी बाउंड्रीज क्रॉस होती चली जाएंगी एंड यू विल सी कि यार लोगों ने तो कहा था सीए बड़ा मुश्किल है, मेरा तो सारे पेपर, ऐसे बच्चे मिलते हैं वो कहते हैं सर मेरे तो सारे पहली अटैम्प्ट में निकलते चले गए, सारे पेपर पास होते चले गए। तो फिर हम कहते हैं वाह, इसका मतलब है कि आपने इधर उधर की दोस्तियाँ नहीं लगाई एंड यू केप्ट ऑन पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स द टारगेट। तो हमारा टारगेट हमें क्लियर हो, बाद में लोग मिलते रहते हैं, बहनें भी मिलती है, भाई भी मिलते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन हम अपना टारगेट तो अपना अचीव करें और फोकस हम अपना सही रखें, ठीक है। वरना अम्मा अब्बा का पैसा लगता है, और खैर इसमें मैं लंबा लेक्चर दे देता हूँ, लेकिन असल क्या है कि हम इसकी पढ़ाई करें। अच्छा, अब हम मूव करते हैं, यूनिट नंबर 1 को शुरू करें। जी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई, ऑनलाइन वाले? हेलो, वो कह रहे हैं गली में से भी एक ऐसी आवाज़ आ रही है और हेडफोन में भी ऐसी आवाज़ आ रही है। सीए वालों पे अटेंशन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 1। लग रहा है कि शर्ट की तबीयत ख़राब है, आज शर्ट को बेगम ने नाश्ता नहीं दिया था भाई, दिया था। हेलो, ये हमारा पढ़ाने का स्टाइल है, ठीक है। हेलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो, हाय, रहीम भाई का मशवरा है कि नेक्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट करें। भाई मेरे पास हाईली मोटिवेटेड बच्चे बैठे हुए, ठीक है, ठीक है। एक होता है मोटिवेट जी, 8 मिनट रह गए, ओ लो अस्तगफिरुल्लाह। भाई जब सीए करने आते तो मिनट को नहीं देखते, हाँ जब बीबीए करते हैं तो फिर मिनट को देखते, ठीक है। अब तुम्हें तो कहना चाहिए सर 15 मिनट लेट क्लास शुरू हुई थी, और पढ़ाएं, क्या ख्याल है? ये लेवल चाहिए। व्हेन यू विल हैव दिस लेवल ऑफ मोटिवेशन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड। यार थोड़ा सा जाग लो, मुझे लग रहा है ये लोगों को वहीं सिस्टम लगा के चले गए, जाके पराठा खा रहे हैं। हेलो, अभी भी यार सिर्फ 3-4 लोगों ने कहा है, आयशा कतरी, लाइबा काशिफ, ईशाल, बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ जाग रहे हैं, वेरी नाइस। जब कोविड चल रहा था तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते थे, तो एक स्टूडेंट आके रिपोर्ट किया गया, सर मेरे दादा आपका लेक्चर बड़े शौक से सुनते हैं, एक यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे दादा आपका लेक्चर बड़े शौक से सुनते हैं। मैंने कहा दादा? कह रहे सर मैं तो गया होता हूँ काम पे, बाइक पे मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई करने, दुकान पे मैंने लगाया होता है, दादा बैठे होते तो आपका लेक्चर सुनते रहते, बहुत इन्जॉय करते। वाह, ठीक है। कोई और बताता था कि हेडफोन लगा के मैं जा रहा हूँ और मैं ये भी काम करके आ गया, वो भी काम कर गया, ठीक है। वेरी गुड, रहीम साहब जिंदा हैं, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी बात पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। मुन्ना भाई तुम बोलो 7 मिनट, हम 7 मिनट में पढ़ाएंगे, और बोलो। वैसे मेरी घड़ी 9 मिनट कह रही है। देखो भाई, राइटिंग का जो प्रोसेस है, ये जब हम राइटिंग की बात करें, प्रोसेस की बात करें, इट मीन्स, अब तुम्हें थोड़ा सा आज मेरी टीचिंग का भी फील आ जाएगा। व्हेन वी आर प्लानिंग टू राइट, करना क्या चाहते हो? यू वांट टू राइट एन ईमेल, यू वांट टू राइट अ लेटर, you want to write a memo, you want to write a report, you want to write essay. Planning is ज़रूरी, planning is must, ठीक है। Planning ज़रूरी है। अब planning के अंदर the writing process has number 1 planning, ठीक है। आपने planning करनी है, जब planning हो गई तो फिर क्या करोगे? ड्राफ्टिंग करोगे। ड्राफ्टिंग हो गई तो क्या करोगे? रिव्यूइंग। हम लोग क्या करते हैं? ना प्लान करते हैं ना रिव्यू करते हैं, सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तुम्हें किसी ने कहा कि ये वाला मैसेज करो, तो तुम व्हाट्सएप पे क्या करते हो? लैंड नहीं करते, तुम डायरेक्ट मैसेज टाइप करते हो और भेज देते हो। जब भेज देते हो कहते हो ओह ये तो कहना ही नहीं था। अब तो शुक्र है कि व्हाट्सएप ने एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया, पुराने ज़माने में एडिटिंग का ऑप्शन भी नहीं होता था, ठीक है। तो पुराने ज़माने में अगर लेटर हमने भेज दिया या ईमेल हमने भेज दिया तो भेज दिया होता था, अब तो वहाँ भी अंडू का ऑप्शन आ रहा है।
सही है। तो अगर एक चीज़ निकल गई, वो कहते हैं ना जबान से जो बात निकल गई तो निकल गई, अब उस पर तुम 1000 सॉरी कर लो, बट यू हैव डन इट, यू हैव सेड इट, इट वाज द स्लिप ऑफ द टंग और व्हाटएवर। सो द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ ड्राफ्टिंग करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले प्लानिंग करनी है। ये मैसेज मैं किसको भेज रहा हूँ, ये मैसेज मैं क्यों भेज रहा हूँ, व्हाट इज माई एजेंडा, व्हाट इज माई पर्पज, व्हाट डू आई वांट टू डू, व्हाट डू आई वांट टू अचीव। हो सकता है मैं उसको ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, हो सकता है मैं उसको ये खबर देना चाहता हूँ दैट वी आर ऑफरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हो सकता है मैं उसको कहना चाहता हूँ ये सारी कुर्सियाँ खरीद लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं उसको खुशखबरी देना चाहता हूँ तुम्हें जॉब मिल गई, हो सकता है मैं उसको बुरी खबर देना चाहता हूँ दैट यू आर डिसमिस्ड, तुम्हारी जॉब गई, ठीक है। हो सकता है मैं खबर देना चाहता हूँ तुम पास हो, तुम एग्जाम में पास हो गए, पप्पू पास है, और मैं हो सकता है खबर देना चाहता हूँ तुम फेल हो गए हो, ठीक है। सो व्हाटएवर द सिचुएशन इज वी नीड टू व्हाट, हेलो, क्या करेंगे, प्लानिंग। और इससे तुम पूरी जिंदगी के लिए सीख लो कि तुमने आज के बाद क्या करना है, प्लान करना है। कोई भी काम, कोई भी कदम बगैर प्लानिंग के नहीं उठाना। शायद मैं तो मेडिकल करना चाहता था लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ, बस मुझे किसी दोस्त ने बताया और मैंने सीए में एडमिशन ले लिया। सीए में एडमिशन प्लान करो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वेयर एम आई सीइंग, आई एम बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम बिकमिंग सीएफओ इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। टारगेट प्लानिंग, सही है। सो व्हेन यू प्लान टू राइट एन आर्टिकल यू नीड टू प्लान, एंड वंस यू प्लान, अब तुमने प्लान कर लिया मेरा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, कंक्लूजन ये होगा, टारगेट ये है, मोटिवेट करना है, एग्री करना है, डिसएग्री करना है, वगैरह वगैरह। वंस यू हैव प्लान देन यू विल ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बोले तो लिखोगे, चाहे उसको टाइप करोगे, चाहे उसको बोल बोल के आजकल रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, चाहे उसको जो है वो हमने हैंड रिटन कर लिया, बट वी विल राइट। अब राइटिंग के बाद भी हमने उसको सेंड नहीं करना, वी हैव टू गो थ्रू इट, रिव्यू इट। रिव्यू में हमें लैंग्वेज एरर मिलेगा, और एग्जाम में भी मैं कहूँगा जब तुमने लिख लिया तो उसको रिव्यू कर लेना, ठीक है, जब तक कि तुम उसको लॉक ना करो। तो रिव्यू करके हमने एडिटिंग करनी है, स्पेलिंग एरर चेक करना है, सेंटेंस एरर चेक करना है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ, right, I am speaking a language, maybe English language, and I make a mistake, no problem. What? Gee, I am speaking, I am making a mistake, no problem. बोलिए wow, ठीक है। लेकिन I am writing and typing and now I am making a mistake, there is a problem. फिर बोलिए wow. अजीब सी बात है ना, बोल रहे हो अंग्रेजी गलत बोली, हैज को हैव बोला, नो प्रॉब्लम। लिख रहे हो अंग्रेजी गलत लिखी, अब ये पकड़ी जाएगी क्योंकि नाउ इट इज रिटन, तो यहाँ बेइज्जती होती है। तुमने कनाडा में अपने क्लाइंट को, तुम फाइवर पे काम कर रहे हो, ठीक है, फाइवर समझते हो, तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और तुमने जो है वो अंग्रेजी गलत लिखी, तुम्हारा क्लाइंट भाग जाएगा, ठीक है। वो कहेगा यार इसका तो लेवल ही नहीं, या फिर फाइवर तुम्हारा लेवल जो है वो डाउन कर देगा, तुम्हारे क्लाइंट भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं, सही है। तो बताने की बात यह है कि द लैंग्वेज मैटर्स एंड द रिटन थिंग मैटर्स, ठीक है ना, सही है। तो प्लानिंग, देन ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के बाद रिव्यूइंग। रिव्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिव्यू पैराग्राफ्स, you have to review the content and you have to decide if I will achieve this target or not. मेरा टारगेट उनको कन्विंस करके ये खरीदवाने का था, तो क्या वो टारगेट अचीव हो रहा है, इस लेटर को पढ़ के क्या मैं कन्विंस हो रहा हूँ, ठीक है, या इस आर्टिकल को पढ़ के मैं फॉर द टॉपिक है तो मैं उसको एग्री कर रहा हूँ या नहीं। तो इधर हम दोबारा बना देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, ठीक है, क्या होगा, हेलो, प्लानिंग। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, ड्राफ्ट बोले तो लिखना। स्टेप नंबर 3 करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, सिर्फ ये करते हैं। हमें आइंदा क्या करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। याद रखिएगा पहला सबक क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट लेक्चर, जिंदगी में जब कभी लिखना हो तो प्लान करो। मौलाना साहब गाना सुनाते जी, उस अंदाज में बात करें। सबसे पहले क्या करो, प्लान करो। प्लान कर लिया तो लिख दो। राइटिंग, ड्राफ्टिंग, नंबर 1 प्लानिंग। यार तुम लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं करे, सीए में हम ऐसे पढ़ाते हैं, सही है, सही है ना। तो नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 राइटिंग और ड्राफ्टिंग। जब ड्राफ्ट कर दिया तो क्या करेंगे, रिव्यू करो। रिव्यू करना है, उसको रीड करना है, लैंग्वेज चेक करनी है, स्टाइल चेक करना है। इफ आई एम अचीविंग द एजेंडा, जो मुझे दिया गया था पर्पस, टारगेट, तो वो अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। यार तुम लोग कोई वाह ही नहीं बोलते, तुम बोलो वाह वाह मौलाना साहब क्या बात है, ऐसा बोल नहीं रहे तुम लोग यार, ठीक है। अच्छा
आगे बढ़े। थैंक यू रहीम भाई। असल ये होता है कि हमने तारीफ़ करनी होती है, तारीफ़, और इसमें शर्माना नहीं है। कल को तुम लोग CFO बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगे, तुम्हारे अंडर में टीम काम कर रही होगी, अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है। कहो वाओ, ये वाओ सीख लो बता, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे नेक इंसान हो तो क्या बोलोगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है, इस तरह से। तो यू हैव टू अप्रिशिएट। इससे क्या होता है, अगले बंदे का दिल बड़ा हो जाता है, सही है। घर जाके भी ऐसा करो, ठीक है। कभी मम्मा को, कभी भाई को बोलो क्या बात है अम्मी, आज आपने क्या खाना बनाया, ठीक है। बाबा आज आपने गाड़ी की जो कटिंग की थी ना, मैं देख रहा था गली में जब आप एंटर हुए, आए हाय, अब्बा भी खुश हो जाएंगे, तुम हैरान हो जाओगे इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो कभी कभी टीचर को भी खुश कर दो, वाह उज़ैर भाई ने कहा माशाल्लाह सर आपका टीचिंग स्टाइल, ये बात। तो तारीफ़ करने में कोई कमी नहीं हो जाती, लेकिन अगले का दिल क्या हो जाएगा, बड्डा हो जाएगा। बाकी मैं नहीं कह रहा मुझे मक्खन लगाओ, मक्खन बहुत लग चुके हैं, सही है ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, अब मक्खन से। अभी देखो सैम्पल्स भी देता है एग्जामिनर, ये मैं सिर्फ तुम्हें चैप्टर का दीदार करा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल हन्नान साहब ने तारीफ़ कर दी है, सही है। अब न्यू क्लाइंट, ओल्ड क्लाइंट, ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, कंटेंट कैसा होगा, सही है। बहरहाल आप लोगों ने घबराना नहीं है, किसी ने तारीफ़ नहीं की तो हम उसको भी पढ़ाएंगे, क्यों भाई। हेलो, क्या कहते हैं, इंसान तारीफ़ का भूखा नहीं होता। तो ये कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, लीनियर कम्युनिकेशन क्या है, रिचर मीडियम क्या है, रिपोर्ट्स, मेमोज, लेटर्स वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन, आइडिया जनरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू लेटर, नाइस मीटिंग, एंड आई होप you would have enjoyed something, you would have learned something, and keep coming and keep attending and keep practicing. एक सबक और दे के जा रहा हूँ कि start reading one article at least every day carefully, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।